Dear students, today I am going to teach you the first lesson in the portrait of a lady. You are the students of class 11th and you have to study your English book based on NCERT pattern. The very first lesson, the portrait of a lady, has been written by Khushwant Singh, and in the lesson he describes a graphic pen picture of his grandmother. He and his grandmother lived in their village home when he was a small child. She was a religious lady, धार्मिक महिला थी. So she always would move her lips in a silent prayer. The author thought his grandmother to be his good friend. His parents had gone to live in the city and had left him with his grandmother. She used to make him ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song. बिल्कुल एक जैसा, विदाउट एनी चेंज, अपने सुबह की प्रार्थना वो किया करती थी. While she bathed and dressed him in the hope that he would listen and would learn it by heart. जब बच्चा खुशवंत सिंह को उनकी दादी नहलाती थी, कपड़ा पहनाती थी, तो प्रेयर गुनगुनाया करती थी यह सोचकर कि वह उसे कंठस्थ कर लेगा, याद कर लेगा. She used to tie his wooden slate, earthen ink pot and red pen in a bundle and handed it to him. बच्चे को चूँकि वो स्कूल लेकर जाया करती थी, तो लकड़ी का जो स्लेट था, इंक पॉट था, दावात और लाल कलम, वो बांध देती थी और बच्चा खुशवंत सिंह को थमा देती थी. His grandmother used to take him to school with her as the school was attached to the temple. The priest used to teach them alphabet and morning prayer. When they started going back, the village dogs would meet them at the temple door. They followed them to their home, fighting with each other for the chapatis they threw to them. जब वो स्कूल लेकर जाती थी बच्चा खुशवंत सिंह को, तो साथ में कुछ चापातीस भी लेकर जाती थी और कुत्तों को खिलाती थी. जब वापस जाने लगते थे दोनों, तो कुत्ते चापातीस के लिए पीछे पीछे उनके जाते थे और वो रोटी कुत्तों को खिलाया करती थी. Now you will see a turning point in their friendship.
When the author's parents were settled well in the city, they sent for them. माता पिता बच्चा के शहर में जब सेटल हो गए तो बुला लिया बच्चे को भी और उसकी दादी को भी. There the author used to go to an English school in a motor bus. Then his grandmother no longer came to school with him. गांव में बच्चा था दादी के साथ तो वह स्कूल पहुंचाने जाती थी और जब माता पिता सेटल हो गए शहर में तो अब वहाँ ये क्रम टूट गया. अब दादी उसकी उसे स्कूल पहुंचाने नहीं जाती थी, बच्चा अकेले ही जाता था. There were no dogs in the streets and there she used to feed sparrows in the courtyard of their city house. अब वहाँ गलियों में कुत्ते तो थे नहीं कि रोटी खिलाएं, तो चिड़ियों को, गौरैयों को अपने उस सिटी हाउस के आंगन में वो रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी. When the author came back from school, she asked him what the teacher had taught him. The author would tell her English words, little things of Western science and learning, the law of gravity, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, etc. She was not happy. She could not help him with lessons. She did not like and believe in the things taught at the English school. She wanted teaching about God and the scriptures. She did not like the teaching of music lessons also. For her, music meant not for gentle folk. अब सिटी के इंग्लिश स्कूल में बच्चे को वहाँ धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाती थीं. आर्किमिडीज का सिद्धांत और गुरुत्व का नियम ये सब सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था. और जो ग्रैंड मदर थीं वो इस टीचिंग को लाइक नहीं करती थी. वो गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में चाहती थी कि पढ़ाई हो. अब म्यूजिक लेसन्स भी पढ़ाए जाते थे तो वह भी ग्रैंड मदर को पसंद नहीं था. गांव में था बच्चा तो वहाँ तो ये भी सहयोग करती थी पढ़ाने में. चूँकि रिलीजियस लेडी थी तो धार्मिक पुस्तकों को ज़्यादा लाइक करती थी. When the author went up to university, the common link of friendship was snapped. जो साझी कड़ी थी दादी और खुशवंत सिंह बच्चे के बीच वो टूट गई. From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers. चरखे पर बैठी हुई भजन गाया करती थी सुबह से शाम तक. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. Hundreds of little birds collected around her. सैकड़ों चिड़िया स्पैरोज उनके चारों तरफ आके इकट्ठा हो जाती थीं.
उनको रोटी का टुकड़ा फेंकती थीं, खिलाती थीं। Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some sat on her head. She used to smile and never made them fly away. It was the happiest hour for her. अब ये दोपहर के समय थोड़ा वो रिलैक्स होती थी, चिड़ियों को उस समय खिलाया करती थी। चिड़िया आकर के कभी कंधे पर, कभी सिर पे बैठ जाया करती थी और मुस्कुराती थी। उड़ाना भगाना नहीं था, और ये वाला समय उनके लिए सबसे खुशहाल समय था। चिड़ियों को खिलाना उनकी शौक थी। The author was to go abroad for further studies and was to be away for 5 years. The author thought that the grandmother would be upset, but she was not even sentimental. She came to leave him at the railway station, but did not talk or show any emotion. She was lost in prayer. Her fingers were busy telling the bits of her rosary. Silently she kissed his forehead, and it was the last sign of physical contact between them. अब सिटी स्कूल से खुशवंत सिंह अब चले जाते हैं विदेश 5 वर्ष तक के लिए। खुद दादी उनके रेलवे स्टेशन पे आती हैं उन्हें छोड़ने। कुछ बोलती तो नहीं, प्रेयर धीरे धीरे गाती रहती थीं। अंगुलियां उनकी माला फेरने में लगी थीं। After 5 years, the author came back home. She clasped him in her arms. 5 वर्ष बाद जब वो घर वापस आए खुशवंत सिंह, तो वह उन्हें बाहों में भर लीं, but had no time for words, but only reciting her prayers. Even on the first day of his arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer. 5 वर्ष बाद वापस आने पर भी वो कुछ बोली नहीं, कोई शब्द नहीं, बस वही प्रेयर गुनगुनाना। उनका तो सबसे खुशहाल क्षण वही था जब वो स्पैरोज को रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी। इन द इवनिंग a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started singing. For several hours she thumped the drum and sang of the homecoming of warriors. वीरों के घर वापस आने के गीत उगाती थीं ड्रम बजा बजा करके। गांव की पास पड़ोस की कुछ महिलाओं को भी उन्होंने एकत्र कर लिया था। ये उनके में एक परिवर्तन आ गया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल। दूसरी सुबह तो बीमारी पड़ गई। शी टोल्ड दैट हर एंड वाज नियर। शी टोल्ड देम दैट बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ she had forgotten to pray. She was not going to waste any more time talking to them. They protested, but she ignored and lying peacefully in bed. She was praying and telling her beads. Just after some time, her lips stopped moving, and a rosary fell from her lifeless fingers. We knew that she was dead. ये अंतिम समय की बात बताते हैं हमारे नरेटर कि वो
भजन गाने में व्यस्त थीं, किसी से बातचीत नहीं करती थीं, कोई विरोध भी करता था तो भी इग्नोर कर जाती थीं और माला फेरना, भजन गाना यही उनका काम था। लेकिन अब तो होंठ भी उनके बंद हो गए और जो माला थी वो गिर पड़ी। खुशवंत सिंह और परिवार के अन्य सदस्य ये समझ गए कि वो डेड हैं। दे लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, बिस्तर से उठाया एंड लेड ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ रेड श्राउड, कफन से ढक दिया गया। ऑल ओवर द वारंदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी lay dead and wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों स्पैरोज आ गईं और डेड बॉडी के इर्द गिर्द शांत भाव से पड़ी रहीं। देयर वॉज नो चर्पिंग, जो स्पैरोज थीं चहचहाना भी बंद हो गया। दे फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। हिज मदर थ्रू सम पीसेस ऑफ ब्रेड बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। खुशवंत सिंह की माँ रोटी का टुकड़ा बिखेरी, लेकिन चिड़ियों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया रोटी की ओर। व्हेन दे कैरीड हिज ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब डेड बॉडी को लेकर के चलने लगे लोग, दे फ्लेव अवे क्वाइटली, शांति से वो उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स into the डस्टबिन। सुबह स्वीपर आया और जो रोटी के टुकड़े बिखरे पड़े थे उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। तो बच्चों, ये पहला लेसन था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं और मैं समझता हूँ कि आप इसको दोहराओगे, पढ़ोगे, तैयार करोगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे उनको मैं समझा दूंगा, नोट करा दूंगा। दैट्स ऑल।